Hello students, today we are going to start our second part of the motion in a plane, that is projectile motion, right? So first of all we will define what is a projectile. When we project a body from some height or from ground and it falls under the action of gravity only without propelled by any engine or any fuel, then this is called as a projectile motion. I have projected this ball from some tower at some angle and it will fall under the action of gravity only. It is not propelled by any engine or fuel, then it is said to be a projectile. So we can define when a body is projected and it falls under the action of gravity only without propelled by without propelled by an engine or fuel, then this motion of object is said to be projectile motion. Projectile motion. Okay. So remember one thing: if we have uh, uh, aeroplane, right, that is not a projectile motion. But if we drop some body from aeroplane, then that will be a projectile motion. So this projectile motion is basically categorized in three parts. One is your horizontal projection, horizontal projection or horizontal projectile, and second is your angular projection or oblique projection, and third one is your projection on inclined plane. So we have basically three type. This third type is for the IIT advance, right? And first two, that is NCRT based, as well for JEE main and NEET examination, right? So one by one we are going to discuss all these. First type of projection, that is your horizontal projection. Horizontal projection, right? So I will take first of all some tower, some height जहां से हमने projection करनी है. So ये मैंने कोई बिल्डिंग ले ली, इस बिल्डिंग से हमने प्रोजेक्शन करनी है. दिस इज द हाई राइज बिल्डिंग फ्रॉम वेयर वी विल प्रोजेक्ट द प्रोजेक्टाइल, राइट. जब आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, इसका मतलब आपने उसको कैसी वेलोसिटी दी, आपने उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे आप इसको ऐसे वेलोसिटी दे रहे हैं इस डायरेक्शन में. तो वेलोसिटी तो आपने इसको ऐसे दी, लेकिन जब आप इसके पाथ को देखेंगे तो इसका पाथ ऐसे आएगा.
ये इसका पाथ रहेगा, इट विल फॉल लाइक दिस, और यहाँ ये ग्राउंड पर हिट करेगी। दिस इज योर ग्राउंड, ये पोर्शन आपके पास ग्राउंड है यहाँ पर, राइट। तो ग्राउंड पर हिट करने पर ये रेस्ट पर आ जाएगी, लेकिन हम इसकी वेलोसिटी भी निकालेंगे, इसकी हाइट भी कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस कंसीडर दिस h इज द हाइट फ्रॉम वेयर इट इज ड्रॉप्ड, ये हमने हाइट मान ली h, और u इज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज गिवन टू दिस, राइट। और ये पॉइंट आपके पास डेफिनेटली बेटा आपने हाइट से इसको प्रोजेक्ट किया है, तो ये जगह आपके पास हमने ओरिजिन मान लिया, ओ पॉइंट मान लिया, right? This is the initial velocity, initial velocity। अच्छा, एक्सेलरेशन कितनी होगी, what will be the acceleration? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और जरूर देखना, 9.8। यस, यहाँ पर एक चीज और आपने ऑब्जर्व करना कि अगर आपने बॉडी को, यू विल राइट हियर, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड with u velocity along horizontal direction, if body is projected with u velocity along horizontal direction, then कुछ चीजें आपके पास निकल के आएगी। देखिए, जब भी आप u लिखेंगे, u में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज अलोंग x एक्सिस एंड अदर इज अलोंग y एक्सिस। बट फ्रॉम हेयर यू विल सी कि x एक्सिस की तरफ को तो u है, लेकिन अलोंग y एक्सिस इट इज 0। ये आपके पास यहाँ है, क्योंकि बॉडी को आपने वेलोसिटी सिर्फ किस डायरेक्शन में दी, इस डायरेक्शन को बेटा मैं x एक्सिस मान रहा हूं, and the direction which is along this side I am taking, this is your y axis। so similarly for the acceleration, acceleration के लिए क्या आएगा आपके पास, acceleration along x axis 0, उस तरफ को कोई फोर्स नहीं लगेगी इसको आगे ले जाने के लिए, राइट। जो आपने इनिशियली दे दी उसी के साथ इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, अब वो उसी से आगे ट्रेवल करेगी। इट मींस अलोंग एक्स एक्सिस अगर आपके पास कोई एक्सेलेरेशन उसको नहीं है, और आप इसमें एयर रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट, वी आर नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, बाकी जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसमें एयर रेजिस्टेंस कोई और रेजिस्टेंस हो, राइट। सो वी आर नेग्लेक्टिंग हियर, we are neglecting effect of resistance। ऐसी कोई भी फोर्स जो इसको क्या करे, रेजिस्ट करे, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए अलोंग एक्स एक्सिस इसकी वेलोसिटी हमेशा u रहेगी, एक्सेलेरेशन 0, बट एक्सेलेरेशन अलोंग y एक्सिस इट इज माइनस ऑफ g। व्हाई आई एम राइटिंग माइनस g, बिकॉज I am taking origin at this point and in downward direction this is taken to be negative y axis। so ये आपके पास g आ गई। अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं जो हमने कैलकुलेट करनी होती है। हमें टाइम निकालना है, कितनी देर में ये ग्राउंड में पहुंचेगी, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट, हाइट कितनी है, अगर u दे रखा है, राइट, सो टाइम दे रखा है, तो फिर कुछ चीजें निकालनी होती हैं। और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, अगर आपने किसी समय पर वेलोसिटी निकालनी है तो ये देखिए, ये इसकी वेलोसिटी होगी इस टाइम यहाँ पर, दिस विल बी वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी में भी दो कंपोनेंट होंगे, वन इज योर एक्स कंपोनेंट एंड अदर इज योर वाई कंपोनेंट। अब देखिए आप, वाई कंपोनेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है आपके पास, राइट। सो इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा एट दैट टाइम, तो ये आपके पास एंगल थीटा भी बनेगा वहां पर, राइट। तो अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक टू थिंग्स, मोशन को स्टडी करते हैं कि एक्स की तरफ को इसकी क्या मोशन है और वाई की तरफ को इसकी क्या मोशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इक्वेशंस of motion for x axis and for a y axis। I will write here motion along horizontal direction। यस बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास मोशन, मोशन की इक्वेशन क्या होती है,
आपको पता है बेटा मोशन की इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s हमें पता है बेटा x माइनस एक्स नॉट, ये रहता है आपके पास। अच्छा मैं अब इसमें y के लिए भी लगता है और ये x के लिए भी लगता है, यहां हम x के लिए लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब अलोंग x एक्सिस। सो आई विल राइट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी। जब आप x के लिए इक्वेशन लिखेंगे देन यू हैव टू टेक ऑल द फैक्टर्स ऑफ x एक्सिस, टाइम t ही रहेगा बेटा। सो ये आपके पास आ गया। यहां पर देखिए x नॉट इनिशियली इट वाज 0 क्योंकि आपने वही ओरिजिन से ही इसको प्रोजेक्ट किया है। ux की वैल्यू कितनी है u, यस ax is equals to 0, put these values in this equation, you will get x is equals to u into t। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। गिव इट इक्वेशन नंबर 2 और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो जब आपने यहां से ये चीज कैलकुलेट कर ली, यहां से टाइम भी निकाल लीजिए, लगे हाथ। टाइम कितना आ जाएगा, t is equals to x upon u, you can find out time from here। now I will write equation of motion along y axis, y axis के लिए भी लिखिए। so जिसको vertical axis आप बोलते हैं, vertical direction। so I will write here motion along vertical direction। जब मैंने वर्टिकल डायरेक्शन कहा बेटा दैट इज अलोंग y एक्सिस। सो सिमिलरली अगेन यू विल राइट द इक्वेशन, इट इज y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब यहाँ एक्सेलेरेशन के साथ मैं y लिख रहा हूं, इट मीन्स ओनली एक्सेलेरेशन अलोंग y एक्सिस, राइट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिंबल रिप्रेजेंट हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर। सो आई विल टेक y नॉट वहीं से प्रोजेक्ट किया गया है, दैट इज 0। uy वेलोसिटी इनिशियली अलोंग y एक्सिस कितनी थी बेटा, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, यस 0 0 because we have projected along x axis। x-axis yes, acceleration along y axis minus g g, it is minus of g, very minus good। g and what about y भी यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, that is equals to minus of y h। minus क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ग्राउंड तक इसको जाना है और h ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। पर चलिए वो बाद में ले सकते हो आप, अभी आप अगर सिर्फ y में इसको इक्वेशन को लिखना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली y में ही रखिए, नेगेटिव ले सकते हो जरूर, because that will travel in downward direction। so I will write here minus of y is equals to, yes, u y that is 0 plus, yes, 1/2 minus of g that is your t square। so equation becomes y is equals to 1/2 g t square। kindly check this equation, ये equation क्या चीज आइडेंटिफाई कर रही है, y is equal to kx square बहुत बढ़िया बेटा, नाइस। y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वेयर, ये हमने एक पैराबोला डिस्कस किया हुआ है, इट इज पैराबोला, राइट। यही चीज हमने डिस्कस की थी। तो इसकी मोशन कैसी होगी, इसकी मोशन होगी पैराबोलिक। कैसी मोशन है इसकी, पैराबोलिक पाथ, इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ। सो आप चाहो तो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप इस t की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर दें, स्क्रीन पर आप आ गए, यस थैंक यू। सो यहाँ t की वैल्यू पुट कीजिए, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 व्हाट वी हैव,
from equation 3 and 4, y is equals to 1 by 2 g, yes it becomes, ये देखिए t की वैल्यू पुट कीजिए यहां से, t की वैल्यू कितनी है x अपॉन u, सो आई विल राइट हियर इट इज x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, this becomes now g upon 2 u square into x square. Now this part is your k, other part is your x, so you can compare these equations. This is your fifth equation and this is your sixth equation. Comparing equation number 5 and 6, comparing equation 5 and 6, we can say that it will follow parabolic path. It will follow parabolic path. You can write here parabolic path, ये आपके पास आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ और चीजें, ये तो हमने देखो इक्वेशन निकाल ली। आपने एक चीज ध्यान में और रखना है, आपको एग्जाम में ये भी चीज आ सकती है कि इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालो। इस चीज को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब जो पाथ की इक्वेशन है वो क्या है इसकी, वो आपने कैलकुलेट करनी होती है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इक्वेशन ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री। सेकंड पार्ट देखिए हमें क्या निकालना है, मैंने कहा आपसे कि हमें टाइम निकालना है कि कितनी देर में ये नीचे पहुंचेगी। सो टाइम निकालने के लिए मैं इसी इक्वेशन को लूंगा, कौन से वाली, इक्वेशन नंबर दिस फोर्थ, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा टाइम होता है आपके पास, जितनी देर के लिए कोई भी प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है, दिस इज द टोटल टाइम फॉर विच projectile is in a flight. So this is called time of flight. You can define it. It is the time for which the projectile is in flight. उसको हम कहते हैं time of a flight. Clear? So from equation number 4, कितना था आपके पास इक्वेशन नंबर 4 में, y इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 gt स्क्वेयर, जस्ट रिप्लेस दिस y विद h। अब आपने माइनस h नहीं लेना, माइनस आप ऊपर y के साथ लगा चुके हैं, तो इट इज योर h इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 gt स्क्वेयर। दिस इज द फार्मूला थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द हाइट, और यहीं से टाइम भी निकल जाएगा आपके पास। t इज इक्वल्स टू 2h upon g under the root. This is your time of flight. Okay, ये है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट और यहां पर, कि जब ये प्रोजेक्टाइल आपके पास लैंड करेगा तो ये कितने दूर जाके लैंड करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन। What is the range of this projectile? This is called range. This is your range, R. This is your range. A range is basically horizontal distance traveled by the projectile. तो इसको range को हम calculate कर लेते हैं। I will write here range of projectile.
you can define it. सर थोड़ा ऊपर करना। It सर is, एक्स एक्सिस को कहते हैं। यस यस बेटा, एक्स एक्सिस की तरफ को जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट, इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हॉरिजॉन्टल की बात हो गई। अच्छा, ये जो आपके पास प्रोजेक्टाइल फॉल करेगा ये प्लेन में गिरेगा, इसमें दोनों एक्सिस आ रहे हैं, देखिए एक्स भी आ रहा है और वाई भी आपके पास आ रहा है। सो व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट रेंज, रेंज होता है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम फॉर विच पार्टिकल इज फ्लाइटिंग, या फॉर व्हाट टाइम इट इज इन फ्लाइटेड मोड. So range is equals to, that is ux is your u, and time is given here, that is your under root 2h upon g. This is the way in which, by which you can find out the range of the projectile. इसमें सिंपल है, बस मैंने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल का फार्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी मैंने कौन से ली, जब x की बात होगी तो x की ही वेलोसिटी लेनी है, जब y की बात होगी तो y वाली ही वेलोसिटी आपने लेनी है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और आपके पास रहती है, मैंने कहा ना कि जब आपने प्रोजेक्टाइल को इस बिल्डिंग से प्रोजेक्ट किया, राइट, ये आपके पास ग्राउंड है, आपने इस बिल्डिंग से इसको प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, मींस आपने तो अपने हिसाब से इसको वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन ये फॉल कैसे किया, ऐसे। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं। सो इट मींस जब आपको किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे, देखो, आई विल टेक, दिस इज द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, जो मैंने ऊपर भी बनाया था, this is the velocity का x component, this is your velocity is y component, and this is your angle theta, right, with x axis. So how you can find out the velocity, so write down velocity of object at any instant, किसी भी समय अगर आपने उसकी वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, what is the formula of velocity, so we will find out velocity. velocity होती है बेटा, उसमें दो कंपोनेंट हैं, one is your x component, other is your y component if a body is moving in a plane. So what about vx, vx निकालने का फार्मूला, vx is equals to, it is your ux plus ax into t, and what is the formula, vy, that is your uy plus ayt, दोनों में वैल्यू डालिए, vx is equals to ux, u है ये आपके पास 0, इसका मतलब vx की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, u। हमेशा ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आपके पास यूनिफॉर्म रहेगी, मींस इट is not going to change. So Vy is equals to, that is minus of a gt. Why I am writing minus gt? This negative sign shows that this y component is along downward direction. आप चेक कर सकते हो इसको ऊपर। तो अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तब भी आपके पास कितना आएगा, इन वेक्टर फॉर्म इट इज योर u I cap minus gt j cap। और अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सो यू कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एज वेल। सो मैग्नीट्यूड इज योर v मैग्नीट्यूड is equals to x component square plus y component square. Just a minute and you will take under root of this. ये आपके पास इसका y component आ गया और x भी आ गया। So just a minute, I will, this is the whole thing. So by using this relation we can find out velocity as well. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और,
angle at that instant. What is the angle made by the velocity at that instant? या resultant velocity जो है वो कितना एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा. थीटा लिखने की बजाय ना इसको let us we will write it अल्फा. अल्फा लिखते हैं इसको, ठीक है. So I will write here angle made by velocity at any instant. किसी इंस्टेंट पर आप देखेंगे कि वो क्या एंगल फॉर्म कर रही है. सो एंगल निकालने के लिए आप देखिए जरा, इसमें ये ट्राइंगल है आपके पास. दिस इज योर वी एक्स, दिस इज योर वी वाई एंड दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो ये आपके पास v है. जब आप इस ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे सो यू विल फाइंड, ये आप ट्राइंगल कैसे कंप्लीट करेंगे, ये ऐसे. सो यू विल फाइंड इट इज योर वी वाई. इस तरफ को ये वाला पोर्शन कितना है, ये तो वी वाई है, राइट. ये वाला पोर्शन कितना है, दैट इज वी एक्स. सो डायरेक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट ऑफ थीटा, जो मैंने आपको बता रखा है. So tangent of alpha is equals to perpendicular. Perpendicular is your Vy and this is your Vx. हाँ, ये downward बनेगा जो आपने जैसे डायग्राम में बना रखा है. So it is tangent inverse. This is your Vy upon Vx. This is your angle alpha. So by using this result, we can find out the direction as well. Second projection is called as angular projection and that is also named as oblique projection. Oblique projection भी बोलते हैं उसको, है ना. Second is your angular projection. That is also known as oblique projection. Okay, so I will take some building. ये हमने not building but from ground now I am going to project this. Building से भी project कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, but for general case I will take this type of projection. This is the ground. From ground we have projected a body at some angle theta with horizontal direction. ये बॉल थी, यहां से इस बॉल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया तो डेफिनेटली ये ऐसे जाएगी और फिर ये यहाँ पर आके हिट करेगी. ये इसका जो पाथ है इस तरह का रहेगा आपके पास. सो देयर आर टू एक्सिस अगेन. दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये वाला आपके पास एक्स एक्सिस आ गया एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस, राइट. तोप का गोला ही. क्या बोला बेटा, पार्डन. तोप का गोला है सर ये. हाँ, बस ऐसा सोचिए, कैनन टाइप है. कैनन ले लीजिए, कोई तोप का गोला ले लीजिए. कैनन से आपने कोई फायरिंग करी, चलिए कैनन ही इसको हम बना देते हैं. वी जस्ट टेक ए कैनन. यहाँ से आपने कोई गोला प्रोजेक्ट किया और वो इस तरह से आपके पास जा रहा है, राइट. सो यस, क्रिकेट में जैसे बॉल आप थ्रो करते हैं, राइट, उसी तरह से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं. सो वी हैव प्रोजेक्टेड दिस ऑब्जेक्ट एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल हमने मान लिया थीटा. इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान ली बेटा u. अब देखिए इसमें दोनों तरफ की वेलोसिटी आपके पास आने वाली है. along x axis this is the initial velocity. इसको अगर आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे तो कितना आएगा, u cos of theta. And along y axis it is U sin theta. very sin good, theta. u sin of theta. That is nice. Okay, now this portion, this is your a, this is your b portion. जहां इसने हिट किया वो b portion है,
इस कंप्लीट पोर्शन को हम कहेंगे रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज योर रेंज। इसको आर से आप लिख सकते हैं। और ये जो इसने हाइट ट्रेवल की, इसको कहेंगे हम एच मैक्सिमम। दिस इज एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट उसकी यही रहेगी। अब एक चीज ऑब्जर्व करिए जो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था आपसे कि एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज 0, बट एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस दैट इज माइनस ऑफ जी। ओके, सो अगर एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस चेंज नहीं करेगी। तो इसका मतलब इस हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? What will be the velocity at highest? U. Not u. जो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल की तरफ को है वही रहेगा u cos of theta. This is the velocity along x-axis at this highest point. And what about velocity along y-axis? That will be 0 at this point. क्यों? क्योंकि ऊपर बॉडी जा नहीं पाई। सो ये इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर है। एक्स एक्सिस की तरफ को हमेशा ही u cos थीटा रहेगी, ऑलवेज, किसी भी टाइम आप मेजर कर लो, क्योंकि वो चेंज नहीं करेगी। इट विल ट्रेवल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो आई विल राइट हियर एज ax is equals to 0, then body will travel with uniform velocity along x axis। x एक्सिस की तरफ को वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, राइट। अब एक चीज और देखिए इसमें, अब हमने क्या करना है, प्रोसेस सारा वही है जो आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में अप्लाई किया था। आपने मोशन देखनी है अलोंग एक्स एक्सिस, सेकेंडली आपने मोशन देखनी है अलोंग वाई एक्सिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। सो इक्वेशन वही लगेगी आपके पास। इक्वेशन इज योर x minus x naught is equals to uxt plus 1 by 2 axt square. Yes, this x naught is 0, and whereas ux is your u cos of U theta cos theta. and ax is your 0. बस वैल्यू पुट करनी है। x is equals to, it is your u cos of theta t and other part is 0. So this is your first equation. Okay, अब यहां से आप टाइम निकाल लीजिए, जरा टाइम निकालिए। टाइम कितना आ जाएगा? t is equals to x upon u cos of theta. ये आपके पास u cos of theta, इसको नाम दे दीजिए सेकेंड इक्वेशन। Similarly, now we will find out motion along y axis. अब आप y axis की तरफ देखते हैं। So I will write here motion along y axis. This is your motion along y axis. Y minus y naught is equals to uyt plus 1 by 2 ayt square. So again y naught is 0, uy velocity along y axis, yes, Mehak, 0. velocity along, initial velocity along y axis,
U sin theta. Yes, U cos. u sin of theta beta, and ay is your minus of g. G. Yes, so put all these values. Y is सर equals, थोड़ा ऊपर करना। you just note down, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। तो Yes. तो ये आपके पास देखिए y इज इक्वल्स टू, आई विल पुट दिस वैल्यू, ये कितना आ गया आपके पास अब, u साइन ऑफ थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। यस बेटा, t की वैल्यू ऊपर से पुट कीजिए इसमें, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। From equation second and third, just a minute. From equation second and third, ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू यू साइन ऑफ थीटा, t की जगह पर आप वैल्यू पुट क्या करेंगे, x अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा माइनस 1/2 g, that is your x upon u cos of theta whole square. So you will find it again, it is your tangent of theta, Of yeah, theta and yes, X. into Okay. x, x में beginning में लिख देता हूँ, x tangent theta minus g upon 2 u square cos square theta into x square. जस्ट आइडेंटिफाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप चेक करिए और मुझे बताइए ये किस तरह की इक्वेशन आपको लग रही है। माइनस के एक्स स्क्वायर। y is equal Plus bx. to, it is minus ax square plus bx, it is like that. तो ये भी तो आपके पास किस तरह की इक्वेशन है, ये भी तो पैराबोला की इक्वेशन होती है। हाँ, ये पैराबोला आपके पास, इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो रीजन नहीं होता, ये कहीं और से स्टार्ट होता है तो ये भी पैराबोला आपके पास। सो ये हमने मैथमेटिकल टूल्स में कर रखा है। सो व्हाट आई विल राइट हियर, बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, नीचे करना। by comparing these two equations, we find the path of projectile is parabolic। ये आपके पास पाथ कैसा बन गया इसका, पैराबोलिक। दिस इज पाथ। कोई डाउट यहां तक? अब हमारा अगला काम क्या है, देखिए अगला काम है हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, मैक्सिमम हाइट निकालनी और रेंज कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले तो हम टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम कितना होगा, राइट। यस, कोई डाउट? हाँ, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लूंगा मैं आपका, नो प्रॉब्लम सर। थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं इसको। सो आई विल, ये वाला पार्ट कर लेते हैं ना सर। हाँ 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 बिल्कुल बेटा। सर थर्ड कल कर लेंगे। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट में आपके पास आ जाएगा
हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ये जनरल इक्वेशन होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, तो यू वाई कितना है, इट इज यू साइन ऑफ थीटा। ए वाई कितना है, g, ये आपके पास t। सो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ t, t इज इक्वल्स टू यू साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। अब आप देखिए ये सिर्फ जाने जाने का टाइम है, दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ एसेंट। ये टाइम ऑफ एसेंट है, तो टोटल टाइम क्या होगा आपके पास, एसेंट और डिसेंट दोनों का। सो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कैपिटल टी है बेसिकली बेटा, इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज योर टाइम ऑफ एसेंट जाने का समय प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों का टाइम है। तो ये ही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, आने और जाने का सेम होगा। तो इसका मतलब टोटल टाइम आपके पास अब कितना बन गया, टोटल टाइम दिस इज योर 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी, ये आपके पास टोटल टाइम आ गया। कोई डाउट किसी को यहां तक? बेटा क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फिर देखिए आगे, अब हमने निकालनी है इसकी मैक्सिमम हाइट। कंटिन्यू करें या यहीं तक रखें, बाकी कल करना है? कर लो सर, यही कर लो, ठीक है, ये पूरा कर लेते हैं। हाँ मैं वही देख रहा था। सो वी विल फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें y की तरफ की बात हो रही है, तो मैं y वाली ही इक्वेशन लगाऊंगा। कौन सी, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू, ये वही इक्वेशन है बेटा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। मैं अलोंग y एक्सिस लगा रहा हूँ इसको। चलिए पहले मैं जनरल लिख लेता हूँ, 1/2 a t square। When we will write this equation along for y axis, it will be y minus y naught u y t प्लस 1/2 a y t स्क्वेयर। जब आप इसमें वैल्यूज डालेंगे तो आप देखेंगे इस y की जगह पर आपके पास h आ जाएगा, y नॉट 0 है बेटा। सो यू वाई आपको पता है, दैट इज कितना है, u साइन ऑफ थीटा, जो साइन थीटा, यस, माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। जब आपने ये वैल्यू डाल दी तो जाने का टाइम तो आपको पता ही है, यू नो द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम ऑफ एसेंट आपने निकाल रखा है ऊपर, ये है देखो स्मॉल टी की वैल्यू। तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट करता हूं अब। सो एज टी इज इक्वल्स टू यू साइन ऑफ थीटा अपॉन जी, ये आ जाएगा आपके पास h इज इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू, यस, u साइन थीटा अपॉन g माइनस 1/2 g, इट इज योर u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन इट इज योर g स्क्वेयर। तो एक g आपके पास यहां से कैंसल आउट, दिस विल कैंसल आउट। सो वी लेफ्ट विथ h is equals to, it is your u square sin square theta upon g minus u square sin square theta upon 2g। जब आप इसका एलसीएम लेंगे और इसको कैलकुलेट करते हैं आप, सो h is equals to that is your u square sin square theta upon 2g, ये आपके पास रिजल्ट बनता है।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट निकल गई आपके पास। उसी तरह से अगर आपने रेंज कैलकुलेट करनी है, व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज, रेंज मैंने अभी आपसे कहा, रेंज इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मींस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, सो व्हिच इज इक्वल्स टू, it is your u cos of theta into 2 sin theta upon g, but with u भी है साथ में। तो ये कितना बन जाएगा एग्जैक्टली, दिस इज योर 2 u यू स्क्वायर cos theta sin theta upon g, ये आपके पास बनी वैल्यू। आप तो यू इसको स्क्वायर नहीं बनेगा। यस इट इज योर यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर हो जाएगा। एक और चीज देखिए इसमें, ये फॉर्मूला बन रहा है किसी चीज का, किसका, इट इज योर यू स्क्वायर टू साइन थीटा दिस इज योर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन टू थीटा जी। ये आपके पास ये फॉर्मूला है किसी चीज का, किसका है ये, साइन टू यू थीटा का स्क्वायर फॉर्मूला। साइन टू थीटा यस, सो आर Upon इज G. इक्वल्स टू, सर इट किस इज चीज योर, का फॉर्मूला है ये बेटा साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का। इट इज साइन टू थीटा अपॉन जी। यहां मैं साइड में लिख देता हूं इसको, दिस इज योर साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू, ये है 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास चीजें हैं, राइट। तो ये आपके पास रेंज बन गई यहां पर, दिस इज द रेंज। we have calculated the range. now when range is maximum, अगर आपके पास रेंज मैक्सिमम है, you want to find out range maximum, so r maximum if this sine of 2 theta is maximum, और ये मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है, you know very well। so 1 कब होता है, साइन 90 डिग्री पर 1 होता है। so put this value here, sine 2 theta is equals to sine of 90 degree, and you will get this 2 theta is equals to 90 degree and theta is equals to 45 degree. It means we will get maximum range when theta is a 45 degree. so ये भी आपको इसमें याद रखना है चीजों को। Now next part of this question that we have to calculate velocity at any instant. Velocity at any instant. सर साइन 90 क्यों लिया? Because we have to find out the value of 1. 1 की वैल्यू देखनी साइन थी, 91 होता है। साइन 90 ही 1 होता है। इससे साइन से साइन आपके पास कैंसल, थीटा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, इसीलिए। क्लियर। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। बाबनीत बेटा लग गया पता? सर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 गिवन है? No, 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 no. That is not given. But you just tell me after looking on this result, when will be range maximum? Range maximum कब होगी? क्योंकि साइन की वैल्यू u is constant, g is constant, ये तो दोनों constant है, तो फिर वेरिएबल कौन बचा? साइन टू थीटा। तो इसका मतलब रेंज मैक्सिमम 1 होती है, हाँ मिनिमम साइन -1। यस साइन 0, साइन की मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0, वो कॉस में होती है बेटा। सो इट इज योर यू स्क्वेयर अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज आई कितनी आपके पास, दैट इज यू स्क्वेयर अपॉन जी। इसीलिए ओके सर, ओके। या सर मिनिमम -1 नहीं होती, 0 क्यों होती नो है? नो बेटा, दैट इज 0, साइन की 0 होती है, ठीक है। हाँ वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, अगर आप सिंबल कैलकुलेट करके कि एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में, वो अलग चीज है मैथमेटिक्स में।
लेकिन साइन की आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दैट इज योर 1, राइट। मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं कि या तो ओके 0 सर। या आपके पास 1। वो साइन ग्राफ में आता है आपके पास कि पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव, राइट। सिर्फ अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि या तो 0 होगी या तो मैक्सिमम होगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास यहाँ ये पर साइन की वैल्यू 1। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी समय पर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, कोई, सो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। जो हमारे ऊपर वाली डायग्राम है मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, राइट। सो व्हेन वी हैव प्रोजेक्टेड बॉडी एट एंगल थीटा विद u वेलोसिटी फ्रॉम हियर, तो ये आपके पास इस तरह से जाएगा, इसका जो पाथ होगा वो ऐसे होगा, लाइक दिस, ऐसे। अब किसी इंस्टेंट पर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, सपोज करिए आपको वेलोसिटी यहां निकालनी है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यू विल टेक द टेंजेंट, बट वेलोसिटी हैविंग टू कंपोनेंट्स, one is your x component, other is your y component, this is the net velocity. So what we will write, velocity is equals to vx I cap plus vy j cap. Now our work is to find out vx and vy. हमारा पहला जो काम है वो vx और vy निकालना है, तो रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, v is equals to u plus at. I am going to take relation v is equals to u plus at. इस रिलेशन को दोनों के लिए यूज करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक फॉर vx, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो जब आप x की बात करेंगे तो हर चीज x की लेनी है, राइट। सो दिस इज योर, so you have already write down velocity along x axis your u cos of theta, and along y axis it is your u sin of theta, and acceleration जो ऊपर आपने डायग्राम में लिखा है ax is your 0 and ay is your minus g. So I will put this value here, vx is equals to u, ये आपके पास u आ गया, right. Second relation for the y axis, I will calculate vy is equals to uy plus ayt. Now we have to put, sorry, just a minute, I just write only u, it is your u cos theta, it is your velocity along x axis is your u cos of theta, right. And for y axis the same equation, vy is equals to uy plus ayt. So now it is your vy is equals to u sin of theta minus gt. दोनों वेलोसिटीज आपको पता लग गई बेटा, इस इक्वेशन में पुट करिए तो आपके पास वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट आ जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u cos of theta I cap plus u sin of theta minus gt j cap. And if you want to find out, सर yes beta, सर vx तो u cos थीटा लिखा, yes, फिर vy u sin थीटा माइनस gt क्यों? ये देखिए, ये वैल्यू देखो ना आपने, मैंने ux ये है, दिस इज योर ux, दिस इज योर uy, एक्सेलरेशन 0 होती है। एक्सेलरेशन इज 0 हियर, इट इज 0, तो ये पार्ट 0 हो गया, सिर्फ यही बचा। यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस ऑफ g है, इसलिए बिकॉज एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस, डाउनवर्ड लग रही है ना, ये जैसे आपके पास अर्थ है, ये सरफेस है आपके पास, तो ग्रेविटी किसी भी चीज को अगर आप ऊपर की तरफ को प्रोजेक्ट करोगे वो कहाँ आएगी, नीचे ही आएगी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती चलेगी और हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस तो 0 हो गई इस पॉइंट पर, लेकिन अलोंग x एक्सिस हमेशा वही रहेगी, कौन सी, जो ux है वही रहने वाली है।
जबकि वाई एक्सिस की तरफ को इस जगह पर वेलोसिटी कितनी हो गई आपके पास, 0। इसीलिए तो बॉडी ऊपर नहीं जा पाई, अगर होती तो ये और भी ऊपर जाती। क्लियर बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? तो मैग्नीट्यूड होता है u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt होल स्क्वायर। इसका ले लीजिए अंडर रूट, तो ये आपके पास अंडर रूट हमने ले लिया। अब इसमें वैल्यू वगैरह डाल के वो बाद की बात है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको कुछ इसके स्पेशल रिजल्ट बताऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिनको हम एक शॉर्टकट की तरह भी यूज करते हैं, राइट। तो ये तो थी आपकी जनरल डेरिवेशन ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन। यहां तक आपके पास ये क्वेश्चन अगर फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपको 5 मार्क्स में भी आ जाती है, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटा ये देख लीजिए, जिन रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूं जो आपको याद होने चाहिए, आपको ये वेलोसिटी वाला रिजल्ट याद होना चाहिए, रिमेंबर दिस रिजल्ट। फिर उसके बाद आप रेंज मैक्सिमम कितनी होती है, इस रिजल्ट को याद रखिए, ये रिजल्ट बहुत जरूरी है जो आपको याद रखना है, ये भी याद करिए रिजल्ट को, राइट। और ये वाला रिजल्ट रेंज का, एक्चुअल रेंज का फार्मूला, इस रिजल्ट को याद रखिए, ये यूज करेंगे हम। एंड फार्मूला ऑफ दिस हाइट, ये वाला रिजल्ट आपने याद करना है। उसके बाद आप ऊपर चले जाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर, ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, इस रिजल्ट को याद रखिए। दिस जनरल इक्वेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई भी करेंगे अभी देखना स्पेशल केस में आगे चलकर, तो ये बहुत जरूरी है, इसको आप याद रखें, राइट। और फिर और थोड़ा ऊपर अगर हम जाएं, यस, बाकी तो आपके पास ये चीजें हैं। और जो कुछ इनिशियल कंडीशंस थी, जैसे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हाईएस्ट पॉइंट पर आपके पास 0 है, बट अलोंग एक्स एक्सिस मैंने आपको कल भी कहा था एक्सेलेरेशन 0 होती है, इसीलिए बॉडी यूनिफॉर्म, ना तो एक्सेलेरेशन है एक्स की तरफ को, ना ही रिटार्डेशन है, तो ये बॉडी आपके पास उस वेलोसिटी के साथ ही ट्रेवल करती रहती है जो इसको इनिशियली मिल गई। अब इनिशियली इसको एक्स एक्सिस की तरफ को कितनी वेलोसिटी मिल गई, दैट इज यू कॉस थीटा, तो वो हमेशा ही इसकी वेलोसिटी उतनी रहने वाली है, राइट। तो चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस पर हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के, और स्पेशल फॉर्मूलेज हैं या पॉइंट्स टू बी नॉलेज, जिसको आप पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सर नीचे करना थोड़ा सा। ओके, कर लीजिए जल्दी से, फिर मुझे बता दीजिए, मैं आगे चलता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट देखिए बेटा, जब भी आप रेंज लिखते हैं, जो आपके पास एक्सप्रेशन है, अगर आप उस रेंज को देखें तो वो रेंज है आपके पास, एक्चुअल फार्मूला ऑफ रेंज दैट वाज, यस, यू स्क्वेयर, यही था ना आपके पास, क्या था रेंज का फार्मूला, बताना जरा मुझे। इट वाज यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी, ये था। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ये था आपके पास यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा था, सॉरी, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको जब आपने एक्चुअली लिखा तो इट इज यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा, और दूसरा आ गया आपके पास कॉस थीटा अपॉन जी। अब आप इसी रिजल्ट को देखिए, r इज इक्वल्स टू, कैन आई राइट दिस u साइन थीटा एंड u कॉस थीटा, यही तो है वो रिजल्ट। और ये कौन सी वेलोसिटी है बेटा, व्हाट इज दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस,
and this is your initial velocity along x-axis. So this result becomes now 2ux uy upon g. ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, राइट? तो ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। वी हैव इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है आपके पास? जो जनरल इक्वेशन थी उसकी y इज इक्वल्स टू x टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस g अपॉन, आप देखते रहना कहीं मैं गलत लिखूंगा तो मुझे बताना, ठीक है? cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। यही थी आपके पास इक्वेशन, ये थी आपके पास ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन जो हमने सबसे पहले ऊपर डिराइव की थी फ्रॉम द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अब इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, देखो आपके सामने y इज इक्वल्स टू, इसलिए मॉडिफाई किया जाता है ताकि हम याद रखने के लिए आसानी हो जाए। टेंजेंट ऑफ थीटा को मैं बाहर लिख लेता हूं, आई टेक इट कॉमन। अगर इसको मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर देखिए क्या बचेगा, 1 माइनस जी, सर एक्स भी बाहर आएगा। हाँ हाँ, एक x भी बाहर ले लेते हैं तो एक x अंदर बच जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक x हम, सॉरी, एक x हम अंदर रख लेते हैं और एक बाहर आ गया आपके पास, ठीक है? ये पूरा रिजल्ट हमने बाहर ले सर लिया। माइनस 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा में तो tan x है, tan थीटा है ही नहीं, तो है ही उसमें नहीं, कैसे कॉमन निकालें? जहां नहीं होता वहां डिवाइड कर देते हैं उसी टर्म के साथ। जहां वो ओके चीज सर। नहीं होती यस है सर। आप वहां पर उसको डिवाइड कर दीजिए उसी के साथ। तो यहाँ पर x तो था लेकिन 10 नहीं था, तो मैंने क्या लिख दिया, आई जस्ट राइट हियर टेंजेंट ऑफ थीटा, और साथ में था आपके पास 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास रिजल्ट यहाँ था। अब आप इसी रिजल्ट को मॉडिफाई करेंगे, देखना y इज इक्वल्स टू x टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब आप देखिए यहाँ पर u स्क्वेयर जो है उसको मैं रहने देता हूं ऐसे ही, 2 को भी ऐसे ही रहने दिया। जो cos स्क्वेयर है बेटा, उस cos स्क्वेयर को भी मैंने ऐसे ही रखा, लेकिन टेंजेंट को मैंने लिख दिया किस फॉर्म में, साइन अपॉन कॉस फॉर्म में। ये भी तो टेंजेंट होता है। टेंजेंट ऑफ थीटा हमें पता है, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो मैंने उसकी ये वैल्यू लिख दी। मुझे क्या फायदा हुआ उसके ऐसा करने से, एक कॉस की वैल्यू मेरे पास sin 2 थीटा बन जाएगा। हाँ, मेरे पास एक कॉस की वैल्यू कैंसिल हो गई, और ये रिजल्ट जो बना अब आपके पास y इज इक्वल्स टू x टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स अपॉन, ये बन जाएगा आपके पास u स्क्वेयर टू साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो अब देखो ये और बड़ा आसान हो जाएगा रिजल्ट, x टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वेयर, दिस इज योर साइन 2 थीटा। और एक और रिजल्ट देखिए, इट इज बेसिकली r की वैल्यू अभी आपने ऊपर लिखी है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये तो आ रही है नीचे क्योंकि g इसका ऊपर चला गया है। इट इज 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, इट इज g अपॉन यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा। तो ये क्या है, 1 अपॉन आर ही है आपके पास यहाँ पर। सो y इज इक्वल्स टू x टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। देखो कितना इजी हो गया आपको रिजल्ट अब याद रखना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को याद रखना बहुत आसान हो गया। x टेंजेंट थीटा आउटसाइड और अंदर आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये आपके पास,
ठीक है, तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको भी आपने याद रखना है, ये भी याद रखिए। अब बात चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ को। तो यहां तक आपने लिख लिया है तो मुझे बताइए, फिर मैं आगे चलूंगा। सो चलिए फॉर द नेक्स्ट point, this is your point number 2. So now point number 3 that you have to remember, जैसे अभी आपने रेंज लिखी, राइट, मैक्सिमम रेंज निकाल ली आपने, 45 डिग्री आपने कहा कि रेंज उस टाइम पर मैक्सिमम आती है। एक और चीज आपको बताता हूं, देखो जो रेंज है वो आपके पास थीटा और 90 माइनस थीटा पर सेम होती है। जो रेंज है आपके पास, मैं बात कर रहा हूं आपसे, रेंज एट टू एंगल्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, उस पर सेम होती है। सो आई विल प्रूव इट कि उसमें ऐसा क्यों होता है। रेंज एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा, चेक करो, देखो रेंज थीटा पर कितनी आएगी आपके पास, दैट इज योर यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर डैश, ये हमने आर डैश ले लीजिए या फिर 90 माइनस थीटा ही लिख लीजिए, इसको भी आई विल राइट हियर 90 माइनस थीटा। रेंज 90 माइनस थीटा पर कितनी आएगी, देखो यू स्क्वेयर साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब आप देखिए इसको, रेंज 90 डिग्री माइनस थीटा पर आपके पास इट इज योर यू स्क्वेयर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। बेटा ये हमने मैथमेटिकल टूल्स में स्टडी कर रखा है। सो दिस आर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन, what is the angle sin 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये कितना बनता है, इट रिमेन सेम, सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपके पास sin 2 थीटा ही आएगा। अब देख लीजिए, एक इक्वेशन आपके पास ये है जो कि थीटा पर थी रेंज, और दूसरी इक्वेशन आपके पास रेंज के लिए ये है जो 90 माइनस थीटा के लिए थी। इन दोनों इक्वेशनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो दिस आर थीटा इज इक्वल्स टू आर 90 डिग्री माइनस थीटा। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। कोई डाउट यहां तक? अब देखो मैं आपको हाइट के लिए भी यही चीज करके बताता हूं। अब हम हाइट तो भी, हाँ जी 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 बोलिए। थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है। जी हाँ बिल्कुल, ये बेटा जब भी ऐसा, हाँ ये एक्यूट एंगल है, ये जब भी ये फॉर्मूले तभी लगेंगे आपके पास जब वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेंज के लिए भी हम कैलकुलेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज अब आपको पता लग गई, इट इज सेम फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, कौन कौन, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अब हम हाइट के लिए भी वही चीज कैलकुलेट करके देखते हैं जरा, राइट। सो आई विल टेक पॉइंट नंबर 4, हाइट एट थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा। सो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, h एट थीटा इज योर यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, यही होता है बच्चे। और दूसरा हम h 90 डिग्री माइनस थीटा पर देखें, सो दैट इज योर यू स्क्वेयर, इट बिकम्स साइन स्क्वेयर 90 डिग्री माइनस थीटा upon 2g. So we will find out this 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए u स्क्वेयर 90 डिग्री माइनस थीटा बेटा क्या बन जाता है, cos ऑफ थीटा बन जाता है। So it becomes cos स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ये देखिए इस रिजल्ट को,
ये है थीटा पर और ये है 90 माइनस थीटा पर। एक आया साइन में और एक आया कॉस में। मैं एक काम करता हूं, इनको एक अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए डिवाइड कर देता हूं जरा। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय दिस, सो h थीटा अपॉन h 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, हर चीज कैंसिल हो जाएगी, यहां बचेगा आपके पास सिर्फ साइन tan स्क्वायर square थीटा theta। और नीचे बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। cos square theta हाँ, वो बनेगा tan। ये टेंजेंट हो जाता है, सो एक नया और रिलेशन आपके पास बन गया, से h थीटा अपॉन h 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, तो ये भी आपने याद रखना है। वैसे ही हम टाइम के लिए निकाल लेते हैं अब। सो फिफ्थ पॉइंट, time of flight at theta and 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये कितना आ गया आपके पास? इट इज योर t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g, यही होता है बेटा। और वैसे ही t 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2u साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन g। देखिए t 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनेगा आपके पास रिजल्ट? इट विल बी 2u 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस ऑफ थीटा अपॉन g। डिवाइड कर दो इसको भी वैसे ही, तो t थीटा अपॉन t 90 डिग्री माइनस थीटा इट बिकम्स टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये भी एक टाइम के लिए रिजल्ट बन गया, ये टाइम के लिए रिजल्ट बन गया आपके पास। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हैं आपके पास, ये आपने याद रखनी है। एक रिजल्ट मैं आपको और बता देता हूं कि जब आपके पास रेंज मैक्सिमम है उस वक्त हाइट क्या है और उनके बीच का रिलेशन क्या है, राइट। पॉइंट नंबर 6, ये देखिए, नीचे करना। ये लीजिए बेटा, एज r इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम आती है रेंज, कब आती है? एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, जो कि आपको पता है आर मैक्सिमम आप निकाल चुके हैं, इट इज योर यू स्क्वेयर अपॉन जी, राइट। उस टाइम हाइट कितनी होगी? सो हाइट का फार्मूला आपके पास दैट इज योर यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। बेटा पुट करो इसमें वैल्यू 45, सो h इज इक्वल्स टू u स्क्वेयर साइन 45 कितना होता है? ये होता है, बिल्कुल। जब आप इसको, इज इट ओके? सो नाउ बाय कैलकुलेटिंग दिस h इज इक्वल्स टू, h कितना आ गया आपके पास? इट इज योर u स्क्वेयर अपॉन 4g। अब एक इक्वेशन ये है और एक ये है, तो पुट कर दीजिए आप इनको, या डिवाइड कर दीजिए आप, r मैक्सिमम अपॉन h, r मैक्सिमम अपॉन h इज इक्वल्स टू, आप देखिए इसमें से जो u स्क्वेयर अपॉन g है, u स्क्वेयर अपॉन g है, वो हो जाएगा आपके पास कैंसिल आउट, क्लियर। और कितना बच जाएगा आपके पास? ये 45 पर कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, सो दैट इज यस 1 अपॉन, कितना बचेगा आपके पास? ये बन गया ना, देखो यू स्क्वेयर, ये 4 आ गया, बाकी तो कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 1/4 ना 4 आपके पास ऊपर चला, 1/2 नहीं नहीं बेटा 4 आपके पास जो है ना वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, yes 4 बन गई।
क्लियर हो गया? हाँ, तो ये बन गया आपके पास रिलेशन। क्लियर? दीज आर द 6 पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स आते रहेंगे बीच में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाकी पोर्शन के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है?